In our revision session, we have already completed all the chapters except one, that is marketing management, which I'm going to complete today. And with this, we would be completing our next round of revision. Now, what will be our strategy is, मतलब आप लोगों को क्या करना है before your boards as a class 12 student at this time. इस वक्त में आपके पास कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी subject. At this hour, you need to now start practicing 3-hour test. Yesterday, also, I'm starting the revision of the chapter marketing management. We have already done this chapter twice. So I'm going to have a very quick revision only of the subject. Oh, sorry, of the topic. See, marketing का मतलब क्या है? एनीथिंग, जब हम लोग अपना एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के बाद तक का जो पूरा सफर है, यानी कि हाउ टू, उस लॉन्चिंग के लिए व्हाट शुड बी द वर्क, हाउ इट हैज टू बी चंक्ड इनटू, उसको डिवाइड करना है, एंड देन हु हैज टू हेड विच डिपार्टमेंट, what kind of planning will be there, what kind of controlling will be there, everything relates to the marketing management. We always have two different मतलब की theories. एक है which we are producing because they are want, यानी कि खाना हमारा want है, बेसिक है, whereas there is something, sorry, needs है, they are needed, but want क्या है, खाने में हमें क्या खाना है, which is specific. And in my terms, I'm not talking about anyone, but in my term, I think जब हम लोग wants को need बना देते हैं ना, तो it becomes marketing. आज पास्ता खाना हमारा जो है, that has become a need rather than want. So now what can be marketed? This can come in your 1 marker question. Anything. आप इंसान को ले लो, जगह को ले लो, मॉन्यूमेंट्स को ले लो, आइडियाज को ले लो, सर्विस को ले लो, प्रोडक्ट को ले लो, टैंजिबल इनटैंजिबल बोथ. तो नाउ व्हाट डज अ मार्केटिंग डू? क्या है मार्केटिंग एक्चुअली? तो फर्स्ट इट आइडेंटिफाइज व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द वांट्स. देन इन दोनों को पूरा करने के लिए it creates some product, it creates some service, and this product or service is not given freely but on an exchange mechanism, and which is also useful for the customer. Many times people say that marketing is going to the market and buying the product. No, marketing starts before your product is launched. It is just when your product has been launched in your mind. Whereas selling is just giving that product, taking the money, persuading the person to buy that product. बस. हम जब मार्केटिंग करने वाले हैं, मतलब अगर मुझे अपना सामान बाहर निकालना है इन द मार्केट, तो उससे पहले आई नीड टू कीप सम थियोरीज कि मेरा जो मार्केटिंग होगा वो किस बेसिस पर होगा, और इन बेसिस को हम लोग बोलते हैं फिलॉसफीज. यानी कि मैं प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दूंगी या प्रोडक्शन पर. प्रोडक्ट का मतलब है द क्वालिटी. एनी हाई एंड प्रोडक्ट, आपका कोई भी हाई एंड गुड ले लो, वो आपका प्रोडक्ट होता है. मर्सिडीज. प्रोडक्शन होता है व्हेन देयर इज मास प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होना और कॉस्ट फैक्टर कम हो जाना. All the garments which are in the market at a middle range, or I just want to sell my product, I'm not caring about the product, I'm not caring about anything, मैं बस aggressive marketing, aggressive sales promotion करती. I don't want to retain the customers. बिक गया ठीक है. There are many things जिसको हम लोग one time use करते हैं, फिर हम वापस नहीं जाते. और
वी वांट टू गो फॉर द मार्केटिंग फिलोसफी, यानी कि पहले पता करना व्हाट पीपल वांट, देन प्रोड्यूसिंग द थिंग्स ऑफ देयर वैल्यू। और आजकल एक बहुत बड़ा हो गया है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है ना, दिस बेसिकली सोशियो मार्केटिंग, जहां हम सोशल वेलफेयर की भी जो है वी आर टेकिंग इनटू केयर। वी वांट दैट द सोशल वेलफेयर ऑफ द society is also taken into care. So what do we do in a marketing? The very first is we go to the through data, थ्रू, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। ये पेपर में एक बार आया था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग। देयर माइट बी अ डेटा आपने ले लिया, या फिर हो सकता है कि आपने रैंडम जो है सर्वे किया किसी भी एरिया का। यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज को कौन से लोग मतलब कि किस रेंज में पसंद करते हैं। दैट कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर गुड्स, इट कैन बी फॉर सर्विसेज, इट कैन बी फॉर एंटरटेनमेंट। जैसे आपका टीआरपी क्या करता है, टीआरपी इज नथिंग बट एन एनालाइजिंग ऑफ द मार्केट की कौन सा पर्टिकुलर शो किस टाइम पर लोग पसंद करते हैं। देन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द वीकनेस, हाउ वी कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, एंड एग्जिस्टिंग या फिर आने वाले टाइम में व्हाट कैन बी द थ्रेट्स। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है उस मार्केटिंग का, उसी मार्केटिंग का जो है हम लोग एक प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ा था, तो प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट वर द स्टेप्स। पहले ऑब्जेक्टिव को देखना, प्लानिंग प्रेमिसेस को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ हम अपने मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी whatever we want, उसको हम लोग जो है we will try to find out how we can best take। हम देखेंगे what is the, identify करेंगे what should be our goal, then we would be taking up the उसके उससे रिलेटेड सारे के सारे जो प्रेमिसेस है यानी कि ऑल्टरनेट्स हैं वो भी देखेंगे, हु आर अवर कॉम्पिटिटर्स वो देखेंगे, हमारा मार्केट स्केल क्या है वो देखेंगे, एंड देन वी वुड टेक अप द नेक्स्ट function, which is what is your product. Now the product can be a product, it can be a service. We give the name as product design and development, लेकिन that can be also for the services, यानी कि आप किस तरीके से अपनी चीज को प्रेजेंट करें। if any one of you is watching Shark Tank, तो उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर दे गिव यू दैट कि वी आर हैविंग द इंस्टा फॉलोअर्स। तो आप अगर उनके, इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, यू विल फाइंड आउट द डिजाइन, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट दे आर यूजिंग। तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, यानी कि आपको उसको एक शक्ल देनी है कि वो कैसा लगेगा when the service when the product is actually in the market। देन डिजाइनिंग के बाद वो तो सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन उसके अंदर जब आप सामान डाल रहे हो, लाइक इफ यू से चिप्स, यहाँ फोटो बनी हुई है, तो चिप्स के अंदर आपको पता है यू हैव द अमेरिकन फ्लेवर, यू हैव द अनियन फ्लेवर, यू हैव द प्लेन सॉल्ट, यानी कि उसका व्हाट शुड बी द सॉल्ट क्वांटिटी, लाइक आप उसे किससे बनाना चाहते हो। लाइक नाउडेज यू हैव द थिंग्स कि इट इज नॉट मेड ऑफ फ्लोर, इट इज मेड ऑफ आटा। तो क्या उसका प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन होगा, एंड अलग अलग जो क्लासिफिकेशंस होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लेस के अंदर आपके जो है यू हैव दिस वन येलो वन ग्रीन वन, या तो वो आपका ग्रेडिंग, और इट कैन बी द साइजेस, वो सारा आप उसको अलग कर। नेक्स्ट very important one will come is your packaging, which is actually also a silent seller, because many times we don't even open that। जैसे हम बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, ये मतलब कि दिस ब्रांड ये तो बढ़िया है। तो और कई बार हम पैकेजिंग को देखते हैं एंड वी से व्हाट अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग इट इज। कई बार सामान अंदर से बहुत बेकार होता है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग होती है ना वो इतनी सुंदर होती है कि वी बाय इट इवन दो वी मे नॉट लाइक इट लेटर। तो इन अनदर वर्ड, पैकेजिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन।
तो उसकी डिजाइनिंग इज स्पेसिफिकली आपके ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह मिलते हैं. देन यू हैव टू फाइंड आउट आप वहाँ लोगो कहाँ लगाना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ नेम यू वांट टू गिव. एंड यू नो इट टेक्स एटलीस्ट अ गुड अमाउंट टू क्रिएट अ लोगो. देन उसको जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर लेकर आना, वो सारा. फिर देन इट ऑल्सो डिपेंड कि आपका पैकेजिंग कैसा रहेगा, what kind of product you are having. For example, something which is jelly, तो टूथपेस्ट आपका, देन आपके जो मेडिसिन हैं जेल वाले, तो उसके अंदर यू हैव द ट्यूब्स. देन यू ऑल्सो हैव द मतलब कि आपका जो है पहला आपका कार्डबोर्ड वाला होता है, देन आपका कार्टन होता है. देन यू ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब्स, 5 ग्राम 10 ग्राम. तो आपको उसकी सबके लिए अलग अलग पैकेजिंग देखनी पड़ेगी. एंड द पैकेजिंग वी नॉर्मली से इज इनटू 3 लेवल्स या 3 काइंड ऑफ पैकेजिंग हमारी होती है. द प्राइमरी, इनसाइड विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली देयर. द सेकेंडरी इज इट्स शील्ड. एंड द थर्ड वन जो है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन. But not all the products may have these 3 kinds of packaging. कुछ आपकी पिल्फरिंग होती है, जैसे आपका you have the products like milk, juice, तो उनकी पैकेजिंग थोड़ी अलग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द वन, आपका जो है कॉर्रुगेटेड आपकी जो बॉक्स होते हैं वो. देन यू मे बी हैविंग, सेकेंडली आपका डायरेक्टली यू मे बी हैविंग द ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग. सो दैट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं. नेक्स्ट, पैकेजिंग आपका आगे की तरफ. पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो लेबलिंग. लेबलिंग विच मीन्स गिविंग एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर्स. हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा था, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर, हम लोगों के लिए राइट टू सेफ्टी. तो वी नीड टू गिव ऑल द इंस्ट्रक्शंस. द पर्सन हु इज बाइंग, द कंज्यूमर हु इज बाइंग दैट, मतलब कि द पर्सन शुड बी गिवन द इंफॉर्मेशन. अगर आप विजुअल दे सकते हो तो आप विजुअल भी दे सकते हो. जब हम लोग ग्रेडिंग कर रहे हैं तो हम उसके अंदर वेज, नॉन वेज, ऑर्गेनिक मतलब ऐसा करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है. प्लस इट ऑल्सो will consist or comprise of the date when it was manufactured. The मतलब अब डेट के साथ में क्या होता है, स्लॉट्स होते हैं. एक स्लॉट में हमने 1000 निकाला, 10,000 निकाला, तो कौन से स्लॉट में हुआ था. देन इफ देर इज एनी पर्टिकुलर एक्सपायरी फॉर दैट, कुछ चीजें हैं जो एक्सपायर नहीं होती लेकिन कुछ हैं वो जो एक्सपायर होती हैं, तो उनको कब तक हमें यूज करना चाहिए. एनीथिंग विच इज related legally you have to. And then in some products you might have seen even the place of origin is written. So everything has to be given in the labeling. Plus label में आप जैसे आप selling techniques रखते हो तो वो भी आपका add होता है. So these are the first, what can I say, 5 main functions. अब आपके पेपर के अंदर, which is one of the very important, and maybe you are asked this question if your project is pertaining to marketing, आपसे ब्रांडिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नॉर्मली इट इज हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर ब्रांडिंग का एक क्वेश्चन होता है. तो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग द नेम टू योर प्रोडक्ट. नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ कंसर्न, जब आप अपने एक कंसर्न को स्टार्ट करते हो तो उस वक्त में आपको अपना नाम पहले से सोचना पड़ता है, और वही नाम जो है वो आपका ब्रांड बन जाता ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. एंड लेटर ऑन आप उस ब्रांड के अंडर जो है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यू कैन मार्केट आउट. तो इसीलिए द ब्रांडिंग शुड बी वेरी 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 carefully chosen, because that creates the goodwill for the company.
The branding, the name that you are giving, the symbol that you are giving to your products will differentiate it from other products. जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं जहां पर बड़े से मतलब कि तो ब्रांड हम क्या बोलते हैं, ओ दैट इज अ ब्रांड. तो व्हाट इज ब्रांड? द नेम. द नेम. द नेम दैट परसिस्ट. टुडे व्हेन वी से नूडल्स तो हमारे पास अगला मैगी ही हमारे मुंह से निकलेगा, चाहे हम खाते हो या ना खाते. बर्गर बोलेंगे तो वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से मैकडोनाल्ड, देन वी वुड गो टू एनी अदर. तो ये जो ब्रांड है दैट हैज टू बी चूजन वेरी वेरी केयरफुली फर्स्ट. आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जो आपका ब्रांड है that should be the combination of sign, design, sometimes both. It should be very short and easy. मतलब बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए. Then it should be suggestive of the product. अब product जो भी आपका होगा कहीं ना कहीं, अब जब हम Apple देखते हैं तो it has got certain significance. It is distinctive and adaptable. As I said, जब आपने एक बार ब्रांड बना लिया तो the products which you are going to add on would be adapted to that product. Your product, in fact, your brand, in fact, gives you the name. And it also should have कि जब आप उसको register करवाते हो, when you are going to the registration authority, it should be accommodative that it is registered. क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो ना तो there you will see आपके ब्रांड से 10 ब्रांड, मतलब कि there are so many brands in the same. जैसे आजकल वो ईट फिट है, मैं देखती हूँ तो आई सी दैट. तो ईट फिट, that suggesting that when you eat you become fit. So that is a suggestive name. So you have to take it in that sense. ये आपके पेपर में और योर प्रैक्टिकल्स में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एंड मोर ओवर इट मे कम एज अ पिक्टोरियल क्वेश्चन. आपको पिक्चर दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि व्हाट इज दिस. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पूछेंगे किसका ब्रांड है, मतलब कहने का मतलब है कि व्हाट इज दिस, वेदर इट इज पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग. टू देन अब आपने ब्रांड का नेम सोच लिया है, यू हैव थॉट अबाउट द ब्रांड, because that should be in that manner कि वो आने वाले टाइम में it is accommodating. And after 5 years your vision should be for 2, 5, 10 years when you are giving the products. अब अगर आपने खाने का प्रोडक्ट लिया है और आप 5 साल बाद उसमें जूते ऐड करोगे तो दैट कैन नॉट बी. तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड. नाउ कम्स what is the price the people have to pay, whether you are going to keep it for the upper end, middle, lower segment. क्या यहाँ पर आपका प्रोडक्शन वाला और प्रोडक्ट वाला जो फिलॉसफी है वो यहाँ पर भी आएगा. जो हम लोगों ने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन जो फिलॉसफी हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने फिलॉसफीज पढ़े थे. तो हमने फिलॉसफी में पढ़ा था प्रोडक्ट फिलॉसफी, प्रोडक्शन फिलॉसफी, मार्केटिंग फिलॉसफी, सोशो मार्केटिंग फिलॉसफी एंड सेलिंग प्रोसेस. तो जो प्राइसिंग है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफीज व्हाट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट. अगर आपका प्रोडक्शन इज योर फिलॉसफी, अगर आपका फिलॉसफी प्राइसिंग है, सॉरी प्रोडक्शन है, तो आप अपना लो प्राइस रख सकते हो क्योंकि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा. आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे तो योर ओवरऑल कॉस्ट आपका कम होगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस डालकर यू कैन हैव अ गुड. देन it is not only that, secondly you need to have a detailed study. आपको पता नहीं कितने एक्सेल शीट्स भरने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि फिक्स्ड, जो आप जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो तो वहां पर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनको हम ऐड करते हैं. नॉट ओनली द रॉ मटेरियल्स, वी ऑल्सो ऐड ऑल द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ हम ऐड कर रहे हैं वो. उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना है. देन इफ एनी प्रोडक्ट इज ऑफ यूटिलिटी, डेली यूटिलिटी का है, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है.
Whereas any product which is hardly used or which is very rare or precious, तो उसका यूटिलिटी ज्यादा, मतलब कि बहुत जो प्रोडक्ट है वो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है. इफ यू सी द, अगर आप लोग अपने घर के अंदर मम्मी से बात करो, पापा से पूछो, तो दे विल टेल व्हाट इज द प्राइस ऑफ पल्सेस. Whereas if you see what is the price of केसर, सैफ्रॉन, उन दोनों में देखो, पल्सेस हम रोज यूज करते हैं तो दे आर अराउंड 200-300 रुपीज किलो, और सैफरन को देख लो, उसका 1 ग्राम जो है वो आपका पता नहीं 40 या 70 रुपीज का आता है, 1 ग्राम. तो दिस डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी, डिमांड. ये डिमांड वाली थ्योरी यू हैव ऑलरेडी, यू मस्ट हैव डन इन योर इकोनॉमिक्स, जो आपका डिमांड एंड सप्लाई कहता है. देन व्हाट इज द कंपटीशन लेवल, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में. अगर आपके जैसे ऑलरेडी 10 हैं तो आपको जो मतलब कि जो प्राइस है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है. कॉम्पिटिटर्स अभी ज्यादा नहीं है तो आप प्रोडक्ट को थोड़ा हाई रेंज पे रख सकते हो, एंड देन यू कैन स्लोली, आप उसको ग्रेजुअली जो है स्टेबलाइज कर सकते हो. देन व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर प्रोडक्शन. क्या क्या मतलब कि आपके पास टैक्सेस हैं, क्या है, गवर्नमेंट किस चीज को, मतलब कई चीजों को गवर्नमेंट प्रमोट करता है, ऑर्गेनिक को प्रमोट करता है, बट आपका क्या है. देन व्हाट आर द मार्केटिंग मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज, दैट वुड डिपेंड. क्योंकि हायर आपका एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट अगर आपका ज्यादा है तो देन आपको जो है आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा. सो व्हाट विल बी दैट. ये सब चीजों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ता है, एंड देन adding our profit margin, we determine the price of a product. बट सबसे पहले हम लेकर चलते हैं द फिलोसफी. नेक्स्ट इज, अब आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपने उसका नाम सोच लिया है, आपने उसकी प्राइसिंग भी कर ली है, अब आपको उसे कस्टमर तक पहुंचाना है. कहीं ना कहीं ये जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दिस शुड कम बिफोर प्राइसिंग, क्योंकि ये भी हमारा एड ऑन कॉस्ट में आ जाता है. तो what will be the level of your distributions. Right now you are having a direct, अगर आप B2C, अभी मैं पढ़ रही थी, just not right now, just half an hour before I was just reading about a news about Ashneer Grover. He has started off his own, अपना जो है उसने स्टार्ट किया है सेकंड या पता नहीं थर्ड स्टार्टअप. तो ही हैज सेड दैट ही इज, मतलब कि जो ये वाला उसका प्रोडक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी B2C, यानी कि बिजनेस टू डायरेक्टली कस्टमर. तो देयर विल बी नो मिडिल मैन इन्वॉल्व. मिडिल मैन जितने होंगे आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन को हमें मार्जिनलाइज करना पड़ता है. सो इफ यू आर हैविंग जीरो, यानी कि डायरेक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया और सीधा कंज्यूमर पे जा रहा है, तो दैट इज द चैनल, दैट कैन बी वन. और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहां मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने खरीदा और कंज्यूमर तक पहुंच गया, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा और कंज्यूमर तक पहुंच गया, लाइक आपके कार्स. और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि जो बड़े कैपिटल गुड्स होते हैं ना बच्चा, उसके लिए हमें 0 या 1 लेवल बहुत है. वेरएज जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, उसके लिए हमारा जो चैनल है वो ज्यादा हो जाता है, बिकॉज द पीपल नीड टू स्टोर देम. अब कार को तो हम सीधा डीलर से लेकर सीधा आ जाते हैं, उसके हमें पार्ट पार्ट नहीं लेने पड़ते. लेकिन जो घर के अंदर सामान आता है, घर के अंदर जो ग्रोसरी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, वो तो हम अपनी जरूरतों के अनुसार लेते हैं. तो दैट इज रिटेन्ड बाय द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स. और इसीलिए हमारा जो कंज्यूमर गुड्स होता है तो वहाँ हमारा जो नंबर ऑफ चैनल्स है, नंबर ऑफ लेवल्स है, वो ज्यादा हो जाते हैं. मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आता, होलसेलर से रिटेलर के पास आता और रिटेलर से वो कंज्यूमर के पास आता. इफ इट इज कैपिटल गुड्स वी हैव ईदर 1 लेवल, और 0 लेवल तो कंज्यूमर तक नहीं आता है. एंड इफ इट, आजकल क्या है, वी आर हैविंग दी ऑनलाइन बिजनेस.
मतलब वेबसाइट के थ्रू भी हम सेल करते हैं, उसको हम डायरेक्ट चैनल कहते हैं. दिस कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन, दैट इज द डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर तक का. फिर अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रमोशन. ये हम लोगों ने अभी भी प्राइसिंग पर्पस में किया है. तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे? हाउ वुड द फ्यूचर कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट? The very common is advertisements, but they are paid, they are non-personal. They may be in the on the TV, they may be on the hoardings, they may be in the newspapers, and for all these we need to pay. लेकिन दैट इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, इन सबको जो है बहुत सारे लोग करते हैं. और इट कैन बी फेस टू फेस सेलिंग. हो सकता है कि आप किसी जगह पर कियोस्क लगा लो, या आप घर घर जाकर बेचो. आजकल पर्सनल सेलिंग टू मच एक्सटेंट इज लेस, लेकिन देन ऑल्सो देर आर इंडस्ट्रीज जहाँ पर्सनल सेलिंग होती है. थर्ड, सेल्स प्रमोशन. आप जगह जगह पे एक्टिविटीज करते हो. एक बहुत अच्छा, बहुत इजी होता है, वो ये है कि द पीपल, द कंपनीज, व्हाट दे डू इज दे गिव स्मॉल पाउचेस वगैरह देते हैं, और सेल्स प्रमोशन करने के लिए डिबे मतलब कि रिबेट देंगे, कंटेस्ट देंगे, स्कूल्स के अंदर जाएंगे, वहां पर अवेयरनेस कहकर वो लोग जो है अपनी चीजों को बांटेंगे. तो आप प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हो, करते होंगे. यू माइट बी हैविंग, मतलब आप कोई इवेंट को करते हो. पब्लिसिटी, दिस हैज बिकम अ स्टंट नाउ. ये एक स्टंट बन चुका है. इट्स एन अनपेड कम्युनिकेशन, जहां पर आप किसी भी चीज के साथ जुड़ जाते हो और अपने आप को पब्लिसाइज करते हो. डे बिफोर yesterday I was reading one article. So in that article I was reading about the various publicity stunts which is used by the celebrities to publicize themselves. और उसके अंदर एक जो था वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं दे डोंट गिव द ऑटोग्राफ्स इन रियल. मतलब वो देते हैं तो वेरी 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 रेयर पीपल. नॉर्मली दे डोंट गिव, दे आर वेरी वेरी एरोगेंट. उनके लिए जो, इफ दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द अगर एयरपोर्ट वगैरह पे भी है तो उनके लिए सेपरेट लॉन्च होता है जहां से वो लोग जाते हैं. वो लोग हमारे साथ नहीं आते हैं. तो ये जो दिखाते हैं कि एक जो फैन था उसने उनके साथ में फोटो लिया, इवन वो फैन उनके पीछे भाग रहा है और वो गुस्सा कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिसिटी. एंड वाज शॉक्ड, क्योंकि द नेम ऑफ अ हीरो वाज देयर अभी रिसेंट का. तो आई वाज शॉक कि ऐसा भी होता है. इधर फैन उसके साथ में रन कर रहा था और वो गुस्सा कर रहा था, एंड दैट वाज एक्चुअली स्क्रिप्टेड. तो ऐसी पब्लिसिटीज भी करते हैं लोग, बट दैट इज नॉट फॉर द गुड्स. That can be for a person, that can be for something else, but that cannot be for a goods. Goods के लिए we have certain other areas. Then ये जो public relation हम बोल रहे हैं, this is where the companies have to have their direct interactions with the consumers by providing them all kinds of tools to reach out. जब आपने सामान खरीद लिया, सामान अच्छा लगा, सामान बुरा लगा, फीडबैक देना है आपको, शिकायत करना है आपको, इम्प्रूवमेंट देनी है, कुछ भी हो, वहां पर हमारा एक डिपार्टमेंट, व्हाट वी कॉल एज पब्लिक रिलेशन, इज इम्पोर्टेंट. वेब ऑन द अदर हैंड, ये जो हम ऊपर देख रहे थे पब्लिसिटी, तो ये जो पब्लिसिटी का पूरा जो ये जिसको हम कहते हैं द सिस्टम है, इट इज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. They are the one who would be publicizing their product, their person, through various, ways. They are the one जो brand awareness को create करते हैं. Even जो advertisement जो create होती हैं वो public relation के through होती हैं. They are the one. They are the one in case your product has been ineffective, या फिर dissatisfied consumers हैं तो उनको address करना, कि पब्लिक रिलेशंस के अंदर आता है. वो होते हैं जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं.
And now public relation is part of corporate what you call as consumer protection, जहां पर it is mandatory कि जो companies हैं they have to establish a separate department where the consumers are able to reach out in case of any problem. Then a company जो है it is full of investors, a company is full of shareholders, a company is also having many kinds of people who are indulged in that. तो उनके साथ जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेट करना है वो भी पब्लिक रिलेशन करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का जो है आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग था एंड कल जो है दे हैव टू गिव द प्रॉफिट एंड लॉस इन द न्यूज़पेपर, तो हु इज गोइंग टू गिव? द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. द पीआर डिपार्टमेंट इज रिलेटेड. और उससे रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियों को देखना, नॉट अ रॉन्ग मतलब कम्युनिकेशन शुड बी गिवन, वो भी उनका काम. तो दिस इज हाउ when we talk about a product, a service, a person, a place, कुछ भी जब हम लोगों को मार्केट में उतारना होता है तो इवन बिफोर इट इज एक्चुअली इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, हमारे हाथों में आने से पहले जब वो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आया है ना, वहां से लेकर हमारे तक और हमारा क्या उनके लिए जवाब है, उनके लिए हमारा क्या फीडबैक है, दिस एंटायर जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है बेटा इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, अब it's also very useful for everyone who wants to do business in the later years, not now, even after 10 years it's very important. Now the next question comes कि इसमें मैम हमारे क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, what kind of questions can we get from this particular chapter. तो very first is आपका ये चैप्टर से रिलेटेड आपके जो है फिलोसफीज एंड फिलोसफीज वाला क्वेश्चन तो आपके सीयूईटी में भी आया हुआ है. तो व्हाट इज द फिलोसफी? आइडेंटिफाई. तो जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कंपनी किस फिलोसफी पर सामान बना रही है. बहुत ज्यादा सामान, कम दाम, प्रोडक्शन, सामान का बढ़िया होना, प्रोडक्ट, लोगों की डिमांड्स एंड नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करना, मार्केटिंग, एनवायरनमेंट एंड सोशल एटमॉस्फेयर प्लस लोगों की सोच के अकॉर्डिंग करना, सोशियो मार्केटिंग, सिर्फ बेचने के लिए करना, सोशल. तो फर्स्ट कैन बी ऑन फिलोसफी. देन देयर माइट बी, आपको जो है 3 स्टेप्स दे दिए हो, यू माइट हैव बीन गिवन 2 और 3 स्टेप्स एंड आपको बाकी स्टेप्स ऑफ फंक्शंस जो है, बाकी फंक्शंस आपको इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं 4, वो बताने के लिए हो सकता है कभी कभी. ब्रांडिंग, ब्रांडिंग से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है. लेबलिंग, that's also very sorry, labeling is very important. And then PR. So these are some of the important questions that you can expect from this particular chapter, that is marketing management.